Good afternoon, students. Again, I am here to teach you grammar for class 5. And now today I am going to teach you lesson 3, that is parts of speech. In earlier videos, I have taught you parts of speech, about parts of speech. Let us recapitulate the definition of parts of speech. All the words in English grammar are divided into 8 parts according to their work and meaning. And all these parts are called parts of speech. इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं उनको उनके काम और मतलब के मुताबिक 8 पार्ट्स में बांटा गया है और इसी डिवीजन को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं. एंड दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वेयर नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, adjective, verb, conjunction, preposition, and interjection. And about noun, we have studied. Noun के बारे में मैंने बता चुका है कि noun is the name of person, place, animal, and thing. And different kinds of noun भी आप लोगों को बताया जा चुका है. Proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. So आप उस वीडियो को फिर से देखेंगे, आपको रिकैपिचुलेट हो जाएगा. Now today we will learn about noun and inflection of noun. Noun के inflection के बारे में. Noun के inflection है noun का gender. Today we will study about gender. Gender means होता है लिंग. So let us see what is gender. What do you mean by gender? Gender is that state of noun that show whether the noun is male or female or non-living thing or common, male or female. तो जेंडर, नाउन का जेंडर हमें यह बताता है कि कोई भी नाउन आइदर मेल है या फीमेल है या कॉमन है दोनों या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है. तो इसके बेसिस पे जेंडर को बांटा गया है. पहला है मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर मींस होता है पुल्लिंग. इट शोज मेल. मैस्कुलिन जेंडर क्या शो करता है? मेल, पुरुष जाति को दिखाता है. As for example, man, boy, fox, etc. Now the second, feminine gender. Second one is feminine gender, that is स्त्रीलिंग in हिंदी. हिंदी में से स्त्रीलिंग बोलते हैं. And it shows female. यह फीमेल को दिखाते हैं. फेमिनिन जेंडर फीमेल को दिखाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर मेल को दिखाएंगे. Now the third, that is common gender. थर्ड जो हमारा है वो कॉमन जेंडर है. दैट इज उभयलिंग इसको बोलते हैं. हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग. एंड इट शोज both male and female. कॉमन जेंडर जो है वो मेल और फीमेल दोनों को दिखाते हैं. जैसे टीचर, डॉक्टर, प्लेयर, पायलट, etc.
Now fourth, neuter gender. फोर्थ वन जो है वो आपका न्यूटर जेंडर है. इट शोज नॉन लिविंग थिंग्स. न्यूटर जेंडर जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स को दिखलाते हैं. जैसे टेबल, चेयर, बॉल, प्लांट, फ्लावर्स. These are neuter genders. So let us recapitulate what we have studied today. Parts of speech में noun का definition आप लोगों को बताया जा चुका है. कई क्लासेस में आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं. So it is very common definition. Noun is the name of a person, place, animal, thing, and the name of the emotion of our life and a state of life. So this is the noun, and today we are studying about inflection of noun. Noun के अलग अलग जो विच्छेद हैं वो, उसमें हम लोगों ने पहले आज देखा नाउन जेंडर के बारे में. नाउन के जेंडर के बारे में. Gender is that state of noun which shows either the person, either the noun is male or female or both or non-living thing. And here are the different genders. Firstly, masculine gender means pulling. It shows male noun. Example: man, boy, etc. Ox, bull. Second one is feminine gender. Feminine gender means striling. It shows female noun. As for example, cat, girl, woman. These are example of feminine gender. कॉमन जेंडर में अब हम लोग देखेंगे कॉमन जेंडर. व्हाट इज कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर शोज बोथ मेल एंड फीमेल. कॉमन जेंडर दोनों मेल और फीमेल दोनों को दिखलाते हैं. एज फॉर एग्जांपल, टीचर, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, सिंगर, etc. नाउ फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर मीन्स नपुंसक लिंग जिसको बोलते हैं. एंड इट शोज मेनली नॉन लिविंग थिंग्स. ये नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाते हैं. न्यूटर जेंडर शोज मेनली नॉन लिविंग थिंग्स. एज फॉर एग्जांपल, टेबल, हैंड, चेयर, etc. So these are the different types of genders. Now we will learn about formation of feminine from masculine. Feminine से masculine कैसे बनाते हैं? Some feminine nouns are formed from the masculine by adding suffix -es. कुछ feminine noun जो है वो masculine noun में suffix -es लगा देने से वो feminine में बदल जाते हैं. Example: poet. Poet is which type of gender? Poet is, yes, masculine gender. And when we add -es to poet, it becomes poetess, and that is feminine gender. So this is the rule. By putting -es of some of the feminine, some of the masculine noun, we make them feminine. Example: poet से poetess हो गए. lion से lioness हो गए. actor से actress, actor, lion. These are masculine noun, and by putting -es we make them feminine. lion का lioness,
एक्टर का एक्ट्रेस एंड सो ऑन। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा रूल जो है, सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म फ्रॉम द मैस्कुलिन बाय चेंजिंग द प्रीफिक्स। अभी तो हम लोगों ने सफिक्स लगा के बनाया, अब हम लोग प्रीफिक्स को चेंज करके बाय चेंजिंग द प्रीफिक्स और सफिक्सेस वी मेक सम फेमिनिन नाउन्स फ्रॉम मैस्कुलिन नाउन। जैसे कॉक स्पैरो, स्पैरो में प्रीफिक्स लगा हुआ है कॉक, तो कॉक को चेंज करके हैन लगा देंगे तो हैन स्पैरो हो जाएगा। कॉक स्पैरो वाज मैस्कुलिन नाउन एंड हैन स्पैरो इज फेमिनिन नाउन। तो यहाँ पे प्रीफिक्स को चेंज कर देंगे तो मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज हो जाएगा। जैसे ही गोट इज नो डाउट मैस्कुलिन नाउन एंड when we replace he by she, then it becomes feminine noun. He got masculine noun है, he हटा के prefix she डाल देंगे तो she got हो जाएगा, वो feminine noun हो जाएगा। Many nouns have different words for the masculine and feminine. कई ऐसे नाउन हैं जिसके मैस्कुलिन के लिए अलग वर्ड है और फेमिनिन के लिए अलग वर्ड है, वो इसको इरेगुलर चेंजेस बोलते हैं। जैसे बॉय का गर्ल, बॉय इज मैस्कुलिन नाउन एंड गर्ल इज फेमिनिन नाउन, फेमिनिन जेंडर। इसी तरह से मैन का वुमन, मैन इज मैस्कुलिन जेंडर एंड वुमन इज फेमिनिन जेंडर। हस्बैंड इज मैस्कुलिन जेंडर एंड वाइफ इज फेमिनिन जेंडर। So these are the different words from masculine noun and as well as feminine noun। ये दोनों के वर्ड ही अलग है। जैसे किंग का क्वीन, हॉर्स का मेयर, कॉक का हैन, डॉग का बिच, बुल का काउ, नेफ्यू का नीस, अंकल का आंट। मतलब मैस्कुलिन के लिए अलग वर्ड है, उसके फेमिनिन के अलग वर्ड है। तो इस तरह से हम लोगों ने नाउन के जेंडर को देखा। अब इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द वर्ड्स इफ दे आर मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं और आपको बताने हैं कि नीचे जो वर्ड है वो क्या मैस्कुलिन नाउन है, क्या फेमिनिन नाउन है, या कॉमन नाउन है, कॉमन जेंडर है, या फिर न्यूटर जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है या फिर न्यूटर जेंडर है। तो आप उसको पहचान लोगे। हंटर, हंटर विच टाइप ऑफ जेंडर, हंटर मीन्स होता है शिकारी। तो ये कॉमन जेंडर, शिकारी मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। इस तरह से अच्छा, कंप्यूटर, कंप्यूटर इज विच टाइप ऑफ जेंडर, ड्यू टू it is non-living things, so computer is neuter gender। ये non-living thing है ना, तो non-living things को कौन शो करता है, न्यूटर जेंडर। एक्टर, एक्टर मैस्कुलिन जेंडर है। अभी मैंने पहला जो रूल बताया था कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर है जिसमें सफिक्स ESS लगा देंगे तो वो फेमिनिन जेंडर में बदल जाएगा। तो एक्टर में अगर ESS लगा देंगे तो एक्ट्रेस, एंड एक्ट्रेस इज फेमिनिन जेंडर। इस तरह से आपको ये बना लेना है एक्सरसाइजेस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो with different inflections of noun, and we will study about noun number. Till then, be safe and be at your home. Goodbye. We will meet in next video with noun number. Till then,